Good morning to all, and welcome to my channel of English Lingua. Let's learn and to speak fluent English. This is my first video of the series and the second video of the YouTube channels. The first video of series of learning a spoken English, and on every video that step by step I'll make you to learn, and slowly you would be utilizing that tips, and you will be making yourself fluent in English. So let's start with the motivational story which came in my life, and I would like to share with you as well. One day, Saurabh came to me and told me that, sir, I have a dream to be part of Indian national defense system. Then I replied him, fantastic. This is a very good dream, and everyone should have a dream such to serve the nation. Then he told me, sir, but there is a problem. I made him relax. Do not worry. If there is a problem, there is a solution. For every problem, there is a solution. And if it comes any kind of problem in life, we need to find out the solution and remove problem from the life. And of course, this is again a good achievement for me as well and for Saurav as well. I just want to let you know that today Saurav is in the NDA, and just few days back I got call from him, and he is getting training in Bangalore, and this is his second years of training. So I remembered him, and I wanted to make my first video taking Saurabh in my video. So what I did when he told me that I have a problem, I could not speak English, and sir, you know that if I cannot speak English, I know that I'm good at the subject, like my mathematics, science subjects are very good. So I know that I can crack my written exam. But for me, the problem is that I do not speak English. Even nobody from my family speak English. Then I told, do not worry. Very soon you will be speaking good English, and I hope so. After speaking, you will be able to crack your interview and group discussion in NDA. So initially I tried to speak English with him, but finally I turned in my own language because I understood that at the first moment he is not very much comfortable in English, so I should go in English instead of I should go in Hindi. So मैंने क्या किया, सौरभ को सबसे पहले सौरभ को बताया कि सौरभ, दुनिया के कोई भी लैंग्वेज बहुत ही आसान है। कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो आसानी से सीख सकते हैं। अब रही बात आपकी, आपने इंग्लिश इसलिए नहीं सीखा, आपने इंग्लिश पढ़ा, आपके सिलेबस में भी इंग्लिश है, और मेरा जैसा मानना है कि जितने भी अपनी कंट्री में हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, सबके सिलेबस में इंग्लिश है। बट हम लोग हमेशा सब्जेक्ट को, इवन मैंने भी ऐसे पढ़ा है, हम लोग हमेशा इंग्लिश को सब्जेक्ट मान के स्टडी किए, कभी भी इस सब्जेक्ट को लैंग्वेज की तरह स्टडी नहीं किए। लैंग्वेज की तरह स्टडी करने का मतलब है, कभी भी हमने अपने स्टडी में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया कि इंग्लिश स्टडी करके हम इंग्लिश को बोल सके। और यही रीज़न है कि जितने भी हिंदी मीडियम से स्टडी करने वाले लोग हैं जिनके सिलेबस में इंग्लिश है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मैं भी इसमें इंक्लूड था और मैंने भी इंग्लिश सीखा। तो मैंने सौरभ को क्या ऐसी चीज़ें सिखाई कि सौरभ एनडीए क्रैक किया, रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू क्रैक किया, ग्रुप डिस्कशन
भी क्रैक किया। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी सौरभ ट्रेनिंग ले रहा है बेंगलुरु में, और कुछ दिन बाद ट्रेनिंग ख़त्म करके शायद वो मेरे से मिलने भी आए। तो मैंने सौरभ को 4 चीज़ें सिखाई, और वो 4 चीज़ें क्या है? मैंने उसको सिखाया इंग्लिश में वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेस, इंग्लिश के पैराग्राफ्स और इंग्लिश के थॉट्स। तो जब मैंने उससे कहा कि वर्ड्स, तो उसने मेरे को कहा कि सर इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स है, अगर डिक्शनरी उठा के देखे तो बहुत सारे वर्ड्स है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, आज के टाइम में इंग्लिश में 1,60,000 से ज्यादा भी वर्ड्स है, 1,000 से ज्यादा सेंटेंसेस है, अनलिमिटेड पैराग्राफ्स है एंड अनलिमिटेड थॉट्स है। बट इंग्लिश बोलने के लिए हमें ना ही डिक्शनरी चाहिए, यानी कि ना ही हमें 1,60,000 वर्ड्स चाहिए, ना ही 1,000 सेंटेंसेस चाहिए, ना ही हमें अनलिमिटेड सेंटेंस चाहिए, और ना ही हमें अनलिमिटेड थॉट्स चाहिए। ये चारों चीज हमारे पास थोड़ी थोड़ी अगर हो जाए तो हम इंग्लिश आसानी से और अच्छी तरह से बोल सकते हैं। यानी शुरुआत में हमारे पास 1,000 सेंटेंस भी हो, सॉरी 1,000 सेंटेंस नहीं, हमारे पास 50 से लेके अगर 1,000 भी वर्ड्स है तो इंग्लिश को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपके पास 3,000 वर्ड्स है तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपके पास 40 से 50 सेंटेंस हो, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। आपको थोड़े बहुत पैराग्राफ्स बनाने आते हो, तब भी आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। और आपको थॉट्स क्रिएट करने आनी चाहिए। यानी 4 चीजें हमें थोड़ी थोड़ी चाहिए, और ऐसा ही काम सौरभ ने किया और सौरभ इंग्लिश में फ्लुएंट हो गया। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इन 4 चीजों पे वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प करेगा। और मेरा पहला वीडियो जो होगा, पहला वीडियो यानी कि इन चारों का पहला वीडियो, वो सेंटेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 40-50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो कि कॉमनली 90% लोग इंग्लिश बोलने में यूज करते हैं। 90% बोले तो अगर वो सेंटेंस मैं आपको सिखाता हूं और आप ऑब्जर्व करोगे किसी इंग्लिश स्पीकर को, तो आपको मिलेगा कि उसके जितने भी सेंटेंसेस यूज किए उसके 90% सेंटेंसेस इन 40 से 50 सेंटेंसेस में ही आते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड सिखाऊंगा, पैराग्राफ बनाना सिखाऊंगा और इंग्लिश में थॉट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। और मैं होप करता हूं कि इन 4 चीजों को सीखने के बाद आप आसानी से अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए, अगला वीडियो मैं रिलीज करूंगा जो सेंटेंसेस पे होगा। आप इंतजार कीजिए, मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।